કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? તમારા પેપર સરસ મજાના જતા હશે. હવે તો માત્ર ગણતરીના પેપર જ બાકી હશે, બરાબર ને? તો બાકીના પેપરને પણ તમારા એટીટ્યૂડથી હરાવી દેવાના છે અને તેનું સૂત્ર છે એક્ઝામ કી એસી કી તૈસી. બરાબર? આજે આપણે વાત કરીએ ચેપ્ટર 7. તેનું શીર્ષક છે ટ્રેન ટુ માઉન્ટેન. બરાબર, વાત શરૂ કરીએ. આ વાત છે એક એવા વ્યક્તિત્વની કે જે એક સમયે આપણા નેશનલ વોલીબોલ પ્લેયર ફિમેલ ટીમના રહી ચૂક્યા હતા. આમ તો તેમનું બાળપણ વેલ ટુ ડુ હતું, સરસ મજાનું વીત્યું હતું. તેમના ફાધર એક આર્મી ઓફિસર હતા અને મધર વર્કિંગ વુમન હતા. એટલે તેમને જે પોતાનું પેશન ફોલો કરવાનું હતું તેમાં તેમને પૂરેપૂરી છૂટ હતી. તેમને એમાં સ્પોર્ટ્સ વધારે ગમતું, ફૂટબોલ વધારે ગમતો. એટલે તેમને ઘરમાંથી છૂટ મળી હતી અને તે સરસ મજાનું ફૂટબોલ રમતા હતા અને છેલ્લે તેમને વોલીબોલ પ્રત્યે પણ એટલો જ પ્રેમ થયો અને ઇન્ડિયાના નેશનલ પ્લેયર તરીકે તેમનું સિલેક્શન પણ થયું અને તે વોલીબોલ નેશનલ લેવલે રમતા પણ ખરા. આ બધી વાત નોર્મલ. પછી એક વખત એવું થયું કે તેમને આ વોલીબોલના પરફોર્મન્સના આધારે તેમનું CISFમાં ઇન્ટરવ્યૂ હતું. CISF એટલે આર્મીમાં જોડાવા માટેની એક પ્રક્રિયા હોય છે, એક સંસ્થા હોય છે જેના થ્રુ આર્મીમાં જોડાઈ શકાય છે. એટલે આ જે લેડી હતા છે તેમની પણ ઈચ્છા એવી હતી કે તે આર્મીમાં પેરામિલિટરી ફોર્સીસને જોઈન કરે. તો ટ્રેનિંગ માટે તે ટ્રેનમાં જઈ રહ્યા હતા. હવે આ જે જર્ની હતી, આ જર્ની તેમની ખૂબ જ પેઇનફુલ રહી, પણ તેનું જે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન હતું તે તેમને ખૂબ જ માન આપી ગયું, સન્માન આપી ગયું. ટૂંકમાં વાત કરીએ તો આ જે જર્ની છે ટ્રેન ટુ માઉન્ટેન, એના જે મેઇન પાત્ર છે તેમનું નામ છે અરુણિમા સિન્હાજી. અરુણિમા સિન્હાજી ભારતના એક નેશનલ પ્લેયર રહી ચૂક્યા છે વોલીબોલના અને એમાં તેમણે સરસ પરફોર્મન્સ આપેલું હતું. વાત છે જ્યારે તે ટ્રેનમાં CISF માટે જઈ રહ્યા હતા. આ ટ્રેનમાં થોડા ગુંડા તત્વો, થોડા ચોર અને ગુંડા ટાઈપના લોકો ટ્રેનમાં ચડ્યા હતા. તે લોકો બધા મુસાફરોને ડરાવીને, ધમકાવીને, ચાકુ બતાવીને પૈસા લૂંટતા હતા. પછી આજે અરુણિમાજી જે કોચમાં હતા ત્યાં જ આ લોકો આવ્યા. ત્યાં આગળ વારાફરતી તે લોકો બધાને આવી જ રીતે ડરાવી ધમકાવીને લૂંટ્યા. તેઓ અરુણિમા સિન્હાજી પાસે આવ્યા. અરુણિમાજીને કીધું કે તમારી પાસે જે હોય તું આપી દે. અરુણિમાજીએ ના પાડી. તેમણે કહ્યું કે હું મારું કશું જ નહીં આપું અને જતા રહો અહીંથી. તો પેલા ગુંડાઓને પોતાના ઈગો ઉપર આવી ગયું. તો તેમણે અરુણિમાજીને બળજબરીથી જે બી હતું તે લૂંટવાનો પ્રયાસ કર્યો અને સામે અરુણિમાજીએ સંઘર્ષ કર્યો. તો તે લૂંટારુઓએ ભેગા થઈ અને અરુણિમાજીને ઉચકીને ચાલુ ટ્રેને બહાર ફેંકી દીધા. અરુણિમાજી બહાર પડ્યા. આ રાતનો સીન હતો, રાતના સમયે આ બધી ઘટના ઘટી હતી. અરુણિમાજી જેવા સામેના ટ્રેક ઉપર પડ્યા, અર્ધ બેભાન હાલતમાં થઈ ગયા. તેમની આંખોની આગળ અંધારું છવાઈ ગયું. તેમને કંઈ ખ્યાલ જ નહીં આવ્યો કે શું થયું છે. તે ટ્રેકની એક સાઈડ બેઠેલા હતા
એમના પગ ટ્રેકની ઉપર હતા અને ધીરે ધીરે એમને થોડુંક ભાન આવવાની તૈયારી હતી ત્યાં અચાનક જ બીજા ટ્રેક ઉપર એક ટ્રેન આવી સળસળાટ કરતી અરુણિમાજીના પગ ઉપરથી નીકળી ગઈ. ત્યાં જ અરુણિમાજી બૂમો પાડતા રહ્યા, ખૂબ દુઃખ અનુભવી રહ્યા હતા, પીડા સહન કરી રહ્યા હતા, પણ અંધારું હોવાના કારણે ત્યાં કોઈ માણસ હાજર નહોતું. તેમણે આખી રાત આ ટ્રેક ઉપર બેસીને ખૂબ જ બૂમો પાડી, ખૂબ જ ચીચિયારીઓ પાડી, પણ કોઈ સાંભળવા માટે હતું નહીં. ઇવન કે તેમનો જે પગ ટ્રેનના ટ્રેક નીચે કપાઈ ગયો હતો તે અડધો લટકેલો હતો અને રેલવે ટ્રેક ઉપર તો ખબર જ છે કે જાત જાતના જીવજંતુઓ ફરતા હોય છે, એમાં ઉંદેડાઓ પણ હતા. ઉંદેડાઓ ત્યાં અરુણિમાજીનો પગને કોતરી ખાતા હતા. આ બધું જ અરુણિમાજી જોઈ રહ્યા હતા, પણ પોતે હલી શકવાને પણ સક્ષમ ન હતા. આવી જ રીતે ખૂબ જ ભયાનક રાત તેમણે વિતાવી. સવાર પડતા આજુબાજુના ગામ લોકોને ખબર પડી તો તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયા, હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યા અને પછી ડૉક્ટરોએ કહ્યું કે તમારો પગ કાપવો પડશે. તેમનો પગ કાપ્યો. પછી ડૉક્ટરોએ અરુણિમાજીને કહ્યું કે હવે તમે જિંદગીભર ઘોડી લઈને જ ચાલશો, તમે જાતે ચાલી નહીં શકો. તેમનું અરુણિમાજીનું મન એટલું મક્કમ થઈ ગયું હતું કે તેમને તે રાત યાદ આવતી હતી કે જે આખી રાત તે ટ્રેક ઉપર બેસી રહ્યા હતા. ટ્રેનો આમથી આમ ને આમથી આમ જતી હતી, પોતે કશું જ નહોતા કરી શકતા, છતાં બેઠેલા હતા. એ જ વખતે તેમણે નિર્ધાર કરી લીધો હતો કે મારે હવે ખૂબ જીવવું છે અને મારે પોતાનું કંઈક કરીને બતાવવું છે. એટલે ડૉક્ટરોએ જ્યારે તેમને કીધું તમે નહીં ચાલી શકો ત્યારે તે હસ્યા. ડૉક્ટરે પૂછ્યું કે મેડમ તમે કેમ હસો છો? મેડમે કહ્યું કે હું તમને કહીશ તો તમે પણ મારી પર હસશો. ડૉક્ટરે કહ્યું કહો શું વાત છે? અરુણિમાજીએ કહ્યું તમે કહો છો ને કે હું ચાલી પણ નહીં શકું, પણ મેં નિર્ધાર કર્યો છે કે હું આવનારા વર્ષોમાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર્વતને સર કરીશ. ડૉક્ટરો હસી પડ્યા. અરુણિમાજીએ કહ્યું કે જો કીધું ને તમને તમે હસશો, પણ આ મારી ઈચ્છા છે, મારી મનની શક્તિ છે, મારું મનોબળ છે. હું આ કામ કરીને જ રહીશ અને મારે તે કરવું જ છે. આવી રીતે દ્રઢ નિર્ધાર કર્યા પછી તે ધીરે ધીરે જે માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર કેવી રીતે જવાય, તેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે, તેની પ્રક્રિયા શું છે, તેના માટે શું તૈયારીઓ કરવી પડે, બધા જ માટે તે રિસર્ચ કરવા લાગ્યા. ધીરે ધીરે કરતાં તેમને રિસર્ચ પૂરું થયું. ધીરે ધીરે તેમના પગની પણ રિકવરી આવી. તેમને એક આર્ટિફિશિયલ પગ લગાવવામાં આવ્યો. પણ તેમનો જે મક્કમ નિર્ધાર હતો કે મારે ચડવું જ છે માઉન્ટ એવરેસ્ટ, તો તેમણે તેની તૈયારીઓ ચાલુ કરી અને આવનારા 3 વર્ષમાં તે ભારતના પહેલા મહિલા પર્વતારોહક બન્યા કે જેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટને સર કર્યો હોય. અને આ જર્ની એમની ત્યાં નથી અટકતી. પછી તેમણે ઘણા બધા પર્વતોને સર કર્યા અને બહુ મોટું નામ કમાયા. એટલે અહીંયા વાત એવી છે કે એક લેડી જે ભણવામાં એવરેજ હતા, જેમને સ્પોર્ટ્સમાં ખૂબ વધારે કરવું હતું, પણ તેમની સાથે સંજોગો એવા બન્યા કે તે સ્પોર્ટ્સમાં આગળ નહીં કરી શક્યા. પણ એ વખતે તેમણે નિર્ધાર કર્યો કે મારે મારી જિંદગીમાં કંઈક કરવું છે, કંઈક બનવું છે અને એક સરસ માઉન્ટેનિયર બનવું છે. તો તેના માટે તેમણે તૈયારીઓ કરી અને છેલ્લે તે બનીને રહ્યા. છેલ્લે તેને આપણા રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડનાથી પણ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા વાત એક જ છે કે જિંદગીમાં ક્યારે કોઈ હતાશા આવે, કોઈ નિરાશા આવે ત્યારે પડી ભાગવાનું નથી. મજબૂત મનોબળ કરવાનું છે, હકારાત્મક અભિગમ રાખવાનો છે, એક સરસ મજાનો ગોલ નક્કી કરવાનો છે
અને તે ગોલને પૂરો કરવા માટે ખૂબ જ સરસ મજાની મહેનત કરવાની છે અને તેની પાછળ લાગી પડવાનું છે. તો આવનારું જીવન ખૂબ જ સરસ હશે અને તમે પણ પોતાનું નામ ખૂબ મોટું કરી શકશો. એટલે અહીંયા એક જ વાત છે કે જો તમારા પેપર ખરાબ જાય તો કોઈ ચિંતા કરવાની નથી. આવનારા પેપર ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન રાખો. રિઝલ્ટની ચિંતા બીજા લોકો ઉપર છોડો. તમે બિંદાસ પેપર આપો, એક્ઝામને એન્જોય કરો અને એક્ઝામની બીક લાગે તો એક્ઝામને કહી દો એક્ઝામ કી એસી કી તૈસી. શું કહેવાનું છે? એક્ઝામ કી એસી કી તૈસી. બરોબર? આ જ એટીટ્યુડથી લાગેલા રહો અને જીવનને સુધારતા રહો. એક જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ જીવન છે તે જીવન ખૂબ જ કિંમતી છે. કોઈ પણ પરીક્ષા આ તમારા જીવન કરતાં કિંમતી નથી. એટલે જ્યારે એવા કોઈ ખરાબ વિચારો આવે, આત્મહત્યા કરવાનું મન થાય કે બીજા કોઈ પણ નેગેટિવ વિચાર આવે તો તરત જ તમારા લાગતા વળગતાઓને નજીકનાઓને જાણ કરો. મને આવું વિચારો આવે છે. મિત્રો હોય, પડોશી હોય, સ્કૂલના ટીચર હોય કે જે તમને સમજી શકતા હોય તેવા લોકોને વાત કરો. તો તમને લાગતું હોય કે તમને કોઈ પણ સમજી શકે એવું નથી તો મારો મોબાઈલ નંબર અહીંયા આપેલો છે. તમે મને પણ કોલ કરી શકો છો. આપણે સાથે મળીને જે પણ સમસ્યા હશે તેનું નિરાકરણ કરીશું. બરાબર ને? તો એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જિંદગી બહુ જ કિંમતી છે. તેને સરસ મજાનો વળાંક આપી અને જીવનમાં આગળ વધવાનું છે. બરાબર ને? અને એક્ઝામ જેવી ઘણી બધી વસ્તુઓ જિંદગીમાં આગળ આવશે અને તે બધાને એક જ એટીટ્યુડ રાખવાનો છે જેમ આપણે એક્ઝામ માટે રાખીએ છીએ કે એક્ઝામ કી એસી કી તૈસી. આવી જ રીતે એટીટ્યુડ રાખી અને આગળ વધતા રહો. બરાબર? હવે આપણે મળીશું આવી જ કોઈ મોટિવેશનની વાત લઈને ચેપ્ટર 8માં. હવે અહીંયા અરુણિમાજી સિન્હાજીનો એક સરસ મજાનો ઇન્ટરવ્યૂ છે જે આવી રહ્યો છે. તો તમે લોકો સરસ મજાની રીતે ખૂબ જ જલ્દી સાંભળજો અને તેમની વાતોને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરજો. બરાબર? ત્યાં સુધી આવજો. थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहां पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है. और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ. 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था. लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं. कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे. किसी ने मना नहीं किया. एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी, वो देता नहीं है. तो मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 तो उन्होंने बाहर फेंका. दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी. दोनों ट्रेनें निकल गई. कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था. थाई को उठा के देखा, मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा. दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी. पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर होते ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने. और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया. जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था. इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था. कुछ लोगों को ट्रैक पे, आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे. मेरे कटे हुए पैर पे आके मेरे पैर कुतर रहे थे. मेरा मैं ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था. पूरे पल में वही चीजें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊं. लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता. सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहां पे हुआ था ये. सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा. तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे, अरे हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें.
मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ वहाँ पे। कहाँ से हिम्मत आई मुझ में, मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहां पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड दे के किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहां के डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीजें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रुनिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद जब ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के आने कि रुनिमा के पास टिकट नहीं था, रुनिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने। फिर बोला कि रुनिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर या बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहां चाह होती वहां राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, वो सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे। हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज सोच ली कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जब मैंने माउंटेनिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, और तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल होगे, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूं, चाहे जितना चीजें मैं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही हूँ, ये मैं एक एक पल कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, रुनिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, रुनिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ रुनिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया। लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, रुनिमा, प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे।
वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहां पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे। खुशी होती थी। उससे भी ज्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाती क्या हो, बता दो, पैर नहीं है फिर भी कैसे चलती हो। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए, शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकते, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार, 5 बार होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट के निकलता था, तो मैं वहां पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लेमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और जब दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज्यादा से ज्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने पे बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देते हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली
मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शिल्पा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल। फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं महसूस करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा, कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना, वो जो हम कहीं बाहर होते हैं तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। फ्लैग को हग किया और बोला फोटो खींचो। बोला पागल हो गई है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल। नहीं, फोटो खींच लो। फोटो खींचा उसने। वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले। 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है। और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा, कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना, तो परेशान हो जाएगा, पागल हो चुकी है, तू मर जाए, यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बनाओ वीडियो। किसी तरीके से मन में 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा, एक अलग कैमरा की, मतलब एक नहीं काम करेगा तो दूसरा करेगा, प्रॉपर प्लानिंग से। शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में ये बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया, शेरपा से मैंने यही बात बोली, ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, मेरे यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहाँ से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने के, मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन बन, मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। वो फाइनली उसने वीडियो भी बनाया। आप बोल रहे फटाफट रोने में नीचे भागो। जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे, लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेस्ट समिट, 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं। जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की, मैंने कहा भाई हाँ चल, नीचे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती हैं एवरेस्ट पे। जब मैं नीचे आ रही हूँ, थोड़ा दूर ही मैं नीचे चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। सिर्फ अंदाजा लगा सकता कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोल रहा कि रणिमा, मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूँ कि रणिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो। मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम है। उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा
और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे और वो फटाफट उसको लेके आए, मुझे लगाया। उसने बोला, अरुणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है, वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था। शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीजों पे यकीन करता हो या पता नहीं भी। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन मैं किसी भी चीजों पे भरोसा नहीं करती क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने, इतना सारा एक्सक्यूज होता है। शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है, कोई मुझसे पूछने ना बचेंद्री मन, ना मेरा परिवार, कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता। लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं। फाइनली जो भी था, लक भाग्य किस्मत में नीचे आ रही थी, बहुत खुश थी। माउंटेन, डेड बॉडीज, मेरा शेरपा, ये लोग थे। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, कह रही मैंने एवरेस्ट सबमिट किया, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के, हम ऐसे हील मार मार के नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट, ऐसे मुड़ नहीं रहा था, ब्लड निकलने लगा था, ये सब यहाँ पे। मुझे शेरपा से मैं बोल रही हूँ कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कैसा लगेगा मेरे दिमाग में। क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट, रेड 3 स्टेज होती हैं। रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ सबसे ब्लड हो। बोला अरुणिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी हूँ, मेरा ऑक्सीजन चलना बड़े मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा, अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती क्योंकि वो क्या करे, क्लाइंबर की वजह से, तो अपनी जान वो भी दी, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। मैंने सोचा क्या करूं अब, रोने अपने आप आंसू कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पर मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पोंछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा दूसरे हाथ से, आर्टिफिशियल लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना शुरू हो गया क्योंकि मेरे पास यही था। ये तो दूसरा था, गिव अप कर दो, तो ये चीज थी। पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ। कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था, उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिर नीचे चला। कैंप 4 टू सबमिट टू कैंप 4 3500 फीट है और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में सबमिट कर लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर, चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी ने ये मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी। हर किसी ने ये चीज मान लिया था। लेकिन मुझे लगता, जब मैं वापस साउथ कोल पहुंची, जब मैं टेंट का जिप खोला, मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है, हम तो सब सोच लिए थे तू चली गई। हर किसी ने ये बोला था। फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब। देखिए ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं एक चार लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूंगी। मैं एक्चुअली, मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक सबमिट करूं। एशिया का एवरेस्ट हो चुका है, अफ्रीका किलिमंजारो हो चुका है, यूरोप का एल्ब्रुस हो चुका है। 23 नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक के लिए। बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। और 4 लाइन, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।